Good morning, dear students. Today our next exercise, chapter 2 relation and functions ਦਾ topic is function. Function ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. A relation f from a set A to a set B is said to be a function. ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? Function. If every element of set A has one and only one image in set B. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਐਫ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਆਰ ਨਾਲ। ਬਟ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਐਫ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਫੰਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਸੈਟ ਏ ਟੂ ਸੈਟ ਬੀ, ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੈਟ ਏ ਟੂ ਸੈਟ ਬੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਬੋਲਦਾ? ਇਫ ਐਵਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਸੈਟ ਏ ਹੈਜ਼ ਵਨ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਵਨ ਇਮੇਜ ਇਨ ਸੈਟ ਬੀ। ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੇ? ਕਿ ਸੈਟ ਏ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਣੂਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਣੂਗੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੈਟ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਟ ਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਸੈਟ ਦੇ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਮੇਜ ਸਿਰਫ ਵਨ ਬਣਦੀ ਆ, ਓਨਲੀ ਵਨ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਬਣਦੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ? ਆਫਕੋਰਸ ਸੈਟ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਥਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸੈਟ ਗਿਵਨ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਟ ਏ ਔਰ ਸੈਟ ਬੀ। ਸੈਟ ਏ ਔਰ ਸੈਟ ਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਪਏ ਆ 1 2 3। ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਏ ਬੀ ਸੀ ਔਰ ਡੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 1 ਦੀ ਇਮੇਜ ਏ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, 2 ਦੀ ਇਮੇਜ ਬੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, 3 ਦੀ ਇਮੇਜ ਡੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੈਟ ਏ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਫ ਐਵਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਸੈਟ ਏ ਹੈਜ਼ ਵਨ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਵਨ ਇਮੇਜ ਇਨ ਸੈਟ ਬੀ। ਮਤਲਬ ਸੈਟ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਮੇਜ, ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਣੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਬਣੂਗੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੈਟ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਸੈਟ ਏ ਦਾ ਔਰ ਇਮੇਜ ਉਹਦੀ ਬਣੀ ਸੈਟ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਬੋਲੀ ਆ? ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਵਨ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਵਨ ਇਮੇਜ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਇਹਦੀ ਇਮੇਜ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ? ਏ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਦੂਸਰਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਮੇਜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2 ਦੀ ਇਮੇਜ ਬੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ, 3 ਦੀ ਇਮੇਜ ਡੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਟ ਏ ਦੇ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਨ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਵਨ ਇਮੇਜ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਣਨੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਇਨ ਸੈਟ ਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਮੇਰੇ ਸੈਟ ਏ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਮੇਜ ਬਣੂਗੀ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੀ ਇਮੇਜ ਬਣੂਗੀ ਸੈਟ ਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ? 1 ਦੀ ਇਮੇਜ ਏ, 2 ਦੀ ਇਮੇਜ ਬੀ, 3 ਦੀ ਇਮੇਜ ਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਟ ਏ ਔਰ ਸੈਟ ਬੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪਏ ਆ 1 2 3 4, ਦੈਨ ਇੱਧਰ ਪਿਆ ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ। ਦੋ ਸੈਟ ਬਣੇ ਪਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ 1 ਦੀ ਇਮੇਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਏ ਬਣਾਤੀ, 2 ਦੀ ਇਮੇਜ ਮੈਂ ਬੀ ਬਣਾਤੀ, 3 ਦੀ ਇਮੇਜ ਵੀ ਮੈਂ ਬੀ ਬਣਾਤੀ ਔਰ 4 ਦੀ ਇਮੇਜ ਮੈਂ ਸੀ ਬਣਾਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? 1 ਦੀ ਇਮੇਜ ਏ, 2 ਦੀ ਇਮੇਜ ਬੀ, 3 ਦੀ ਇਮੇਜ ਬੀ, 4 ਦੀ ਇਮੇਜ ਸੀ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਸੈਟ ਏ ਦੇ ਹਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਔਰ ਵਨ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਵਨ ਇਮੇਜ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ 1 ਦੀ ਇਮੇਜ ਏ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ, ਅਲੱਗ ਐਲੀਮੈਂਟ। 2 ਦੀ ਇਮੇਜ ਬੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ, ਅਲੱਗ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਇੱਧਰ 2 ਤੋਂ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਸੈੱਟ ਦਾ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। 3 ਦੀ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ ਬੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਏ, 2 ਬੀ, 3 ਬੀ, ਦੈਨ 4 ਸੀ। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਸੈੱਟ ਆ ਉਹਦੇ ਹਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਮੇਜ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੀ ਇਮੇਜ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 1 ਦੀ ਏ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਬਣੀ ਆ ਨਾ। 2 ਦੀ ਬੀ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਬਣੀ ਆ। 3 ਦੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ 1 ਦੇ ਪਾਪਾ ਏ ਆ, ਰਾਈਟ।
2 ਦੇ ਪਾਪਾ B ਆ, 3 ਦੇ ਪਾਪਾ B ਆ, 4 ਦੇ ਪਾਪਾ C ਆ। ਹੁਣ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੀ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ B ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਇੱਧਰ 3 ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ B ਵੀ ਪਾਪਾ, 3 ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ C ਵੀ ਪਾਪਾ, ਨਹੀਂ ਨਾ, 3 ਜਸਟ ਬੋਲਦਾ ਮੇਰੇ B ਪਾਪਾ, 2 ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ B ਪਾਪਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਦੀ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ, 3 ਦੀ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਧਰੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇਮੇਜ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 1 ਦੇ ਪਾਪਾ A, 2 ਦੇ ਪਾਪਾ B, 3 ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰੇ C ਵੀ ਪਾਪਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ D ਵੀ ਆ ਔਰ E ਵੀ ਆ। ਹੁਣ 3 ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਨੋਟੀ ਬੱਚਾ, ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਪਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ 3 ਪਾਪਾ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰੀਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੈੱਟ A ਦੇ ਹਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸੈੱਟ B ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਣੂਗੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਮੇਜ। ਦੇਖੋ ਸੈੱਟ A ਦੇ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈੱਟ A ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਸੈੱਟ A ਦੇ ਥਰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਮੇਜਸ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, 3। ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ 2 ਦੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਸੀ B, 3 ਦੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਸੀ B, ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਦੀਆਂ ਹੀ 3 ਇਮੇਜਸ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਨਾਟ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਪਰੂਵਲ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੈੱਟ A ਦੇ ਹਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਇਮੇਜ ਬਣੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਸੈੱਟ A ਦੇ 3 ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ 3 ਇਮੇਜਸ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, C, D ਔਰ E। ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਟਸ ਆ ਨਾਟ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਆਈ ਹੋਪ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਔਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, F ਨਾਲ, ਔਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਸੈੱਟ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈੱਟ B ਤੱਕ। ਇਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸੈੱਟ A ਟੂ ਸੈੱਟ B ਤੱਕ। ਸੈੱਟ A ਦੀਆਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਇਮੇਜ ਸੈੱਟ B ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਆਰ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਦੇਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਗਿਵਨ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਦੈਨ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਣਾ। ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਇਟਸ ਡੋਮੇਨ ਐਂਡ ਰੇਂਜ। ਫਸਟਲੀ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੇਣਾ ਆ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਦੈਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰੇਂਜ ਔਰ ਡੋਮੇਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਫਸਟ ਪਾਰਟ 'ਚ ਮੇਰਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਵਾਲਾ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਗਿਵਨ ਆ, 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਸੈੱਟ ਹੋਊਗਾ, ਸੈੱਟ A, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਹੀ ਸੈੱਟ B 'ਚ ਬਣੂਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੈੱਟ A ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਹੀ ਬਣੂਗੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਫਸਟ ਪਾਰਟ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈੱਟ A ਦਾ, ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈੱਟ B। ਸੈੱਟ A 'ਚ ਕੀ ਆ, 2 5 8 11, 2 5 8 11, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, 14 17, 14 17 ਆਹ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਆ। ਦੈਨ ਇੱਧਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਕੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ, 1। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਕੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ, 1, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਮੇਜ 1 ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੈੱਟ A ਦੇ ਹਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਮੇਜ ਕੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ, 1। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ A ਦੀ ਸਿਰਫ ਸਿੰਗਲ ਇਮੇਜ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿਰਫ 1 ਇਮੇਜ ਹੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। 2 ਦੀ ਇਮੇਜ 1, 5 ਦੀ ਇਮੇਜ 1, 8 ਦੀ ਇਮੇਜ 1, 11 ਦੀ ਇਮੇਜ 1, 14 ਦੀ ਇਮੇਜ 1, 17 ਦੀ ਇਮੇਜ 1। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਏ ਆ, ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਬਣੇ ਪਏ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਸਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੀ ਆ। 2 5 8 11 14 17, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ 2 ਦੀ ਇਮੇਜ ਕੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ, 1, ਔਰ 2 ਦੀ ਇਮੇਜ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋਰ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ, ਨਹੀਂ ਨਾ।
तो ये देखो हेयर नो टू ऑर्डर पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट। ये की हाँ कि अगर मेरे आ जिन्ने भी ऑर्डर पेयर पे हुए आ इन्हां दे विच मेरे पेयर्स दे अंदर फर्स्ट कंपोनेंट किसी का भी अगर कॉमन नहीं आ जां सेम नहीं आ तो की होगा मेरा फंक्शन। फंक्शन यही हुंदा है कि हर एलीमेंट सैट ए दी सिर्फ एक इमेज ही बने सैट बी दे विच। 2 दी एक इमेज ही बनती पई है सैट बी दे विच 1, 5 दी सिर्फ एक इमेज बनती पई है 1, 8 दी इमेज बनती पई है सिर्फ एक 1, 11 दी इमेज 1, एज दैट 14 और 17 दी। ठीक है जी। हुण तुसीं मैनूं दसो ये फंक्शन है या नहीं है? ऑफकोर्स फंक्शन है। ठीक है जी। तो इसका रीजन लिखो। मेरा फंक्शन की गिवन से 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 और 17 1 गिवन सी ना। हुण देखो इन्हां दे विच किते भी फर्स्ट कंपोनेंट मतलब फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं ना आ रहा, इदां तो नहीं हो रहा, अलग अलग इमेज बनती पई है सब दी। 2 दी 1, 5 दी 1, 8 दी 1, मतलब की हो गया कि हर एलीमेंट दी अपनी इमेज बनती पई आ। ठीक है जी। हुण देखो 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1 तो इन्हां दे विच किते भी मेरा फर्स्ट कंपोनेंट आ जिहड़ा वो पेयर्स दे विच सेम नहीं है, सारिਆਂ ਦਾ डिफरेंट आ। 2 5 8 11 14 17 डिफरेंट आ ना। तो लिखो रीजन की लिखूँगी हेयर नो टू ऑर्डर पेयर have the same first component। कंपोनेंट की होंदा है जी? एलीमेंट नूं ही कंपोनेंट बोल देंगे। ठीक है। हेयर नो टू ऑर्डर पेयर्स मतलब इत्थे कोई भी दो ऑर्डर पेयर्स इदां दे नहीं आ जिन्हां दे विच मेरा फर्स्ट कंपोनेंट सेम होवे। सैकेंड कंपोनेंट सेम आ वो नहीं आपां देखना, सैट बी नहीं अपना मेन फोकस कि सैट ए दे विच। सैट ए दे विच जिन्ने भी एलीमेंट आ मेरे वो सारे डिफरेंट आ ना, सेम नहीं आ। ठीक है जी। सो की हो गया एफ इज़ फंक्शन। उन्होंने की बोले सी अगर तुहाडा फंक्शन एफ तुहाडा फंक्शन हो जाए फिर तुसी की फाइंड करना वो डोमेन और रेंज। तो डोमेन ऑफ फंक्शन आप दसी सी की हुंदा फर्स्ट सैट। ठीक है। मतलब फर्स्ट कंपोनेंट कितना हो गया 2 5 8 11 14 17। तो मेरी डोमेन की होगी फंक्शन दी 2 5 8 11 14 17। ठीक है जी। रेंज की होंदी सी सैट बी सैकेंड कंपोनेंट। ठीक है जी। तो की होगी रेंज ऑफ फंक्शन कितना हो गया जस्ट 1 क्योंकि सारे क्या रहा 1 1 1 वाली इमेज बना रहा ना। ठीक है। तो सैकेंड कंपोनेंट होंदा आ वो की हो गया मेरी रेंज 1 हो गई। लगी समझ? उन्होंने की बोलिया सीगा कि थानू रिलेशन गिवन आ तुसी उस फंक्शन दे विच चैक करना आ को जो रिलेशन गिवन ऑफ फंक्शन है या नहीं है। अगर है तो रीज़न दो, अगर नहीं है तो रीज़न दो। हुण अपना इत्थे देखिया जदों आपां चैक कीता तो मेरा फर्स्ट कंपोनेंट किते भी सेम नहीं आ रहा, हर एलीमेंट की अपनी एक इमेज बन रही आ। ठीक है जी। तो की हो गया इन्हें किसी भी इतने आप रीजन की लिखा हेयर नो टू ऑर्डर पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट। किते भी अपने कोल दो इदा के पेयर्स नहीं है जिन्हां दे विच पहला अपना एलीमेंट या कंपोनेंट कॉमन हो नहीं ना, सारे चला गया 2 5 8 11 14 17 डिफरेंट आ। तो इट मीनस की है मेरा फंक्शन हो गया। दैन उन्होंने कहा सी अगर फंक्शन हो जाए फिर तुसी उहदी की फंक्शन की फाइंड करनी है डोमेन। डोमेन की हुंदा है मेरा रिलेशन द फर्स्ट कंपोनेंट। तो फर्स्ट कंपोनेंट की सी 2 5 8 11 14 17। दैन रेंज ऑफ फंक्शन की होंदी है रिलेशन द सैकेंड कंपोनेंट। सैकेंड कंपोनेंट की आ रहा जी 1। ठीक है। हुण नैक्सट चलिए सैकेंड देखो की बोलता पिया आ। सैकेंड की 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 और 14 7। हुण इन्हां दे विच देखो किते भी अपने दो ऑर्डर पेयर इदां दे हैगे जिन्हां दे विच फर्स्ट कंपोनेंट सेम होवे नहीं, अलग अलग है ना। 2 4 6 8 10 12 14 सारे फर्स्ट कंपोनेंट डिफरेंट है ना। इट मीनस की इन्हां दे विच भी कोई भी ऑर्डर पेयर्स दे विच फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं है, ये भी फंक्शन हो जाऊगा। इहदा भी तुसी की फाइंड करना डोमेन और रेंज। ठीक है। फर्स्ट वांग ही है। दैन नैक्सट आ जाओ थर्ड ते। थर्ड ते क्या 0 0 1 1 1 -1 4 2 4 -2 9 3 9 -3 16 4 16 -4। हुण तुसी मैनूं दसो
इस रिलेशन दे विच कोई भी थानू ऑर्डर पेयर सेम लगता है कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फर्स्ट कंपोनेंट सेम आंदा आ यस आ देखो इन्हां दोनों दे विच भी दोनों ऑर्डर पेयर दे विच की आ मेरा 1 1 सेम कंपोनेंट आ गया दैन इस ऑर्डर पेयर च भी 4 4 सेम आ गया दैन ये भी 9 9 सेम आ गया 16 16 सेम आ गया अगर फर्स्ट कंपोनेंट 2 ऑर्डर पेयर दे विच सेम आ जाए दैन फिर मेरा फंक्शन होएगा कि नहीं ऑबवियसली नहीं देखते हैं आप रिलेशन बना लेने इहदा आ देखो फंक्शन ले लिया मैं दैन सैट बी फिर किहड़ा बन जूगा 0 1 -1 4 -2 मतलब की हो गया 1 अब फेलो की हो गया -1 माइनस वाली टर्म भी है ना -1 -2 -3 -4 0 1 2 3 4 इतने तक ही है ना देखो 0 आंदा है -1 आंदा है -2 आंदा -3 आंदा -4 आंदा दैन फिर 1 आंदा पिया है 2 आंदा पिया है 3 आंदा पिया है 4 आंदा पिया है तो मैं 2 बना ले सैट ए और बी बन गया हुण उन्हें की क्या मेरी 0 की इमेज किहड़ी बनती पई आ 0 राइट दैन मेरी 1 की इमेज की बनती पई आ 1 1 की इमेज की बनती पई आ 1 नाल ही की बनती पई 1 की इमेज -1 भी बोलता पिया है ਇਹਦਾ मतलब की हो गया 1 की इमेज -1 भी हो गई ठीक है जी 4 की इमेज मेरी किहड़ी बनती पई आ पॉजिटिव दा 2 और 4 की इमेज नैगेटिव दा 2 भी बनती पई आ ठीक है 9 की इमेज पॉजिटिव 3 और नैगेटिव 3 भी उन्हें दसिया है 16 की इमेज 4 और 16 की इमेज -4 भी बोलिया इट मीनस फंक्शन ने की बोलिया सीगा कि तुहाडे कोल सैट ए दे हर एलीमेंट की सिर्फ एक इमेज बने बट इत्थे तो फस्ट एलीमेंट दियाँ कितनियाँ इमेज बनदियाँ पईयां 2 मतलब 1 की -1 इमेज भी बनती पई और 1 भी बनती पई आ 4 की -2 इमेज भी बनती पई और 2 भी बनती पई आ 9 की -3 भी और पॉजिटिव 3 भी 16 की -4 भी और पॉजिटिव की 4 भी मतलब देखो सैट ए दे इत्थे जिन्ने एलीमेंट आ 1 4 9 6 उन्हां सारियां दियां कितनियां इमेजिस बनदियां पईयां 2 2 ये तो फंक्शन की डेफिनेशन दे ऑपोजिशन च हो गया क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन ने की बोलिया सीगा सैट ए दे हर एलीमेंट की सिर्फ एक इमेज ही बनूगी सैट बी च इधर तो सैट ए दे एक एलीमेंट दियाँ 2 2 इमेजिस बन रही हैं ठीक है जी सो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन तो इनू आप किद्दां लिखांगे थ्रैटिकल पोर्शन च रीजन किद्दां लिखना इहदा देखो हेयर नैक्सट हुण आप जो रीजन देना है ना नैक्सट इहदे विच तो आप इन्हां दे पेयर्स नूं लिखांगे विच here 2 ordered pairs 1 1 ले लिए पहला ही 1 दा -1 और 1 दा 1 तो की बन गया 1 1 और 1 -1 ठीक है have the same first component ठीक है जी therefore f is not a फंक्शन फिर तो फंक्शन होएगा ही नहीं फंक्शन मेरा कदों होना सीगा जदों उन्हें कहना सी हेयर नो 2 ऑर्डर पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट नो ठीक है ਇਹਦਾ मतलब की हो गया कि मेरे और किसी भी 2 ऑर्डर पेयर ਦੇ ਵਿੱਚ फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं आना चाहिए सी फिर वो फंक्शन होगा बट इत्थे की हो गया मेरे 2 ऑर्डर पेयर के अंदर फर्स्ट कंपोनेंट सेम आ गया ना 1 1 तो दैट मीनस ये फंक्शन नहीं होएगा आई होप हुण फाइंड करना आ जाऊगा हुण नैक्सट देखो आ वाला 4th पार्ट 5th 6th और 7th पार्ट खुद ट्राई करन दी सॉल्व आउट करो ठीक है जी और मैंने दसियो हो गया कि नहीं पता चलिया कि फंक्शन बननगे जां फिर फंक्शन नहीं बननगे ठीक है जी रीजनस भी देने नाल नाल अगर फंक्शन बन गया तो डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है ठीक है जी चलो हम नैक्सट एग्जाम्पल से चलते हैं नैक्सट एग्जाम्पल देखो की बोल रहा द रिलेशन एफ इज़ डिफाइंड बाय एफ एक्स अपन एफ एक्स रिलेशन किवें दिता है एक्स स्केयर कदों जो एक्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 होएगी और लैस दैन और इक्वल टू 3 होएगी ठीक है जी नैक्सट 3x कदों होएगा जो एक्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3 होएगी और लैस दैन और इक्वल टू 10 होएगी ठीक है जी ये हो गया एफ दैन रिलेशन जी इज़ डिफाइंड बाय फंक्शन एफ ये वाला डिफाइंड होया सी ना रिलेशन हुण जी का रिलेशन की गिवन है एक्स स्केयर कदों होएगा जो एक्स की लिमिट 0 तो ग्रेटर और इक्वल होएगी और 2 तो लैस और इक्वल होएगी ईवन 3x 2 तो
इक्वल ਜਾਂ ਫਿਰ 2 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ 10 ਤੋਂ ਲੈਸ ਔਰ 10 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਐਫ ਇਜ਼ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਜੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਗਿਵਨ ਆ ਐਫ ਔਰ ਜੀ ਵਾਲਾ। ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੋ ਕਰੋ ਐਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਔਰ ਜੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਫ ਐਕਸ ਤੋਂ। ਤੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹਿਆ, ਆਪਾਂ ਰਫ 'ਚ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆ ਐਕਸ ਤੁਹਾਡੀ ग्रेटर और इक्वल टू 0 होएगी और एक्स ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3 ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ 3x ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ x ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3 ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10 ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਫ ਵਰਕ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਾਊਗੀ x ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਟ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है, उन्हें ग्रेटर क्या आया 1 हो सकती है 2 हो सकती है। हूँ देखो उन्हें दूसरी टर्म च की बोलता लैस दैन 3 और इक्वल टू 3 मतलब क्या जहाँ तो 3 मतलब एक दो टर्म्स आ 3 तो वैल्यू लैस होनी चाहिए एक्स की और 3 के इक्वल होनी चाहिए। तो कितने तक आ जाऊगा 3 तक। 3 तो लैस की हो गया 0 1 2 और 0 तो ग्रेटर की हो गया 1 2 3। ਆਹ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਟਰਮ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵਲ ਕਰਵਾਤੀ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਿ ਐਕਸ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰਾ 0 1 2 ਔਰ 3 ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਇਸ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਸਕੁਏਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਕਸ ਸਕੁਏਅਰ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਮੈਂ 0 ਆਂਸਰ ਇਜ਼ 0। ਠੀਕ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਐਕਸ ਸਕੁਏਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ 1। ਨੈਕਸਟ ਐਕਸ ਸਕੁਏਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ 2 ਦੀ तो आंसर इज़ 4। नेक्स्ट 3 दी दैन आंसर इज़ 9। इत्थों तक आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया। फर्स्ट फंक्शन की बोलिया सीगा कि तुहाडी एक्स की वैल्यू 0 तो लैके 3 तक लाइक करती पई आ एक्स स्क्वेयर दी। तो आप एक्स स्क्वेयर के अंदर वो एक्स की वैल्यूज़ नूं पुट करना स्टार्ट करता। तो मेरे को आह वाला फंक्शन बन गया इन्ना कंप्लीट। इत्थे तक मैं कंप्लीट करता ना 3 तक। हुण नैक्सट देखो उन्हें की क्या 3x दैन वो कित्थों स्टार्ट हो रहा है ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3 तो लैके कितों तक जा रहा है लैस दैन और इक्वल टू 10 तक। तो एक्स दी वैल्यूज़ इत्थे किद्दां पुट करांगे 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक चली जाओगी ना। 3 ਦੇ इक्वल और 3 तो ग्रेटर 10 ਦੇ इक्वल और 10 तो लैस इत्थों तक हो गया ना। 3 तो लैके 10 ਦੇ तक लाइक कर गई वैल्यूज़। हुण फंक्शन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ 3x फंक्शन है ना। तो 3x 'ਚ पुट कराओ फस्ट कितना है 3x आ तो मैं पुट करवाया 3 3 इंटू 3 आंसर इज़ 9। दैन की हो रहा है 3x 3 इंटू 4 एक्स की वैल्यू 4 पुट हो जूगी है ना। तो आंसर इज़ 12। दैन 3x 3 दैन एक्स की वैल्यू 5 आंसर इज़ 15। दैन 3x 3 the value is 6 आंसर इज़ 18। दैन 3x 3 एज इट इज़ नाल क्या आ रहा 7 तो आंसर इज़ 21। then 3x 3 into 8 24। next 3x 3 x की वैल्यू 9 तो आंसर इज़ 27। then last 3x 10 आंसर इज़ 30। इन्ना बनया देखो फस्ट एक्स स्क्वेयर फंक्शन से ना वो एक्स दी वैल्यूज़ लाई कर 0 तो लैके 3 तक। तो मैं इत्थे तक पुट करवाती हाँ। नैक्सट मेरा 3x फंक्शन से वो वैल्यूज़ लाई कर एक्स दी 3 तो लेके 10 तक। ठीक है जी, आप वो सारिया वैल्यूज़ पुट करवाती। हुण देखो मेरे को रिलेशन किहड़ा बनता पिया है वो बनाने आपां। रिलेशन देखो एक्स की वैल्यू 0 दैन आंसर इज़ एक्स स्क्वेयर दा 0। तो फस्ट किहड़ा बन गया मेरा 0 0। नैक्सट मेरा एक्स की वैल्यू 1 एक्स स्क्वेयर की वैल्यू भी 1। ठीक है जी 1 1। नैक्सट एक्स की वैल्यू 2 एक्स स्क्वेयर की वैल्यू 4 तो कितना बन गया 2 तो 4। नैक्सट एक्स की वैल्यू 3 सॉरी एक्स की वैल्यू 3 और एक्स स्क्वेयर की वैल्यू 9 इतने स्क्वेयर आना भी सॉरी टू मिसटेक इतने 2 से स्क्वेयरिंग। ठीक है जी, दैन आंसर कितना हो गया 3 और 9 का पेयर बनया। हूँ नैक्सट देखो इतने एक्स की वैल्यू कितनी है 3 और इतने कितना 9। ठीक है, मतलब एक्स की वैल्यू मैं 3 पुट की है दैन 3x का आंसर कि आ गया 9 दे 3 9 का पेयर बनया। इधर भी 3 9 का पेयर बनता मतलब दो सेम में तो पेयर बनते पे आ 3 9 3 9। तो उन्होंने चो आप एक लै सकते हैं ना क्योंकि दोनों ही 3 9 3 9 बनते पे आ प्रूव लाने तो मैं उन्होंने चो एक पेयर ले लिया। ठीक है जी, और नैक्सट देखो एक्स की वैल्यू 4 दैन 3x का आंसर इज़ 12 तो कि पेयर बनया 4 नाल 12 का।
ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 5 ਦੇ ਨਾਲ 15 ਦਾ। ਨੈਕਸਟ 6 18 ਨਾਲ, ਦੈਨ 7 ਦਾ ਪੇਅਰ 21 ਨਾਲ, ਦੈਨ 8 24 9 27, ਲਾਸਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 10 ਔਰ 30 ਦਾ ਪੇਅਰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪੁੱਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਹ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਦੇਖੋ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ਫਸਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਆ? ਨਹੀਂ, ਫਸਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਗਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸੇਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਦੈਨ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਹੀ ਬਣੇ ਸੈਟ ਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਫੋਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਹੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਲਿਖੋ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹਦਾ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਸੇਮ ਉਹੀ। ਹੇਅਰ ਨੋਟ ਟੂ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰਸ ਹੈਵ ਦ ਸੇਮ ਫਸਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਨੋਟ ਸੇਮ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਐਫ ਇਜ਼ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਆ, ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਐਫ ਐਕਸ ਵਾਲਾ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਦੈਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਜੀ ਐਕਸ ਲਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੀ ਐਕਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਲਿਖੋ ਜੀ ਐਕਸ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਦੈਨ ਜੀ ਐਕਸ ਦਾ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਐਕਸ ਸਕੁਏਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਐਕਸ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੋਏ 2 ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਮੇਰਾ 3x ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2, ਐਕਸ ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਫ ਵਰਕ। ਠੀਕ ਆ, ਈਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਕਸ ਸਕੁਏਅਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਤੱਕ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀਆਂ 0 1 2। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, एक्स की वैल्यू कितनी होगी 0 1 2। दैन दूसरा फंक्शन 2 तो 10 आ, तो की होगी एक्स की वैल्यू 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है जी, तो हम आप पुट करनी शुरू करते हैं। फस्ट मेरा फंक्शन कि एक्स स्क्वेयर, तो वो पहलों 0 की स्क्वेयर की आंसर इज़ 0, दैन एक्स स्क्वेयर 1 की स्क्वेयर की आंसर इज़ 1, एक्स स्क्वेयर 2 की स्क्वेयर की आंसर इज़ 4। ठीक है, और नैक्सट आ गया 3x। 3x तो पुट करो 3x की वैल्यू कितनी है 2, आंसर इज 6। नैक्सट 3x, दैन x की वैल्यू कितनी है 3, आंसर इज 9। अगेन 3 दे विच वैल्यू पुट करो 4, आंसर इज 12। दैन 3 दे नाल x की वैल्यू पुट करो 5, आंसर इज 15। 3 दे नाल वैल्यू पुट करो x की 6, आंसर इज 18। दैन 7 नाल 21, 8 ਨਾਲ 24, then 9 ਦੇ ਨਾਲ 27। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, 10 ਦੇ ਨਾਲ 30। ਠੀਕ ਆ, ਇਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ 3x ਵਾਲੀਆਂ ਔਰ ਐਕਸ ਸਕੁਏਅਰ ਦੀਆਂ ਆ ਵਾਲੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਓ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣੂਗਾ ਇਹਦਾ। 0 ਐਕਸ ਸਕੁਏਅਰ ਦਾ ਆਂਸਰ 0, ਮਤਲਬ 0 0 ਬਣ ਗਿਆ, ਯੈਸ। ਦੈਨ ਫਿਰ 1 1, ਯੈਸ। ਦੈਨ 2 ਔਰ 4, yes, then x 2 or 6, yes, 3 9, then 4 12, next 5 15, next 6 18, next 7 21, 8 24, 9 27, 10 30। ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ, ਜੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ। ਐਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਉਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਦੇਖੋ ਹੈਗਾ ਕੋਈ 0 0 1 2 2 4 2 6 3 9 4 12 5 15 6 18 7 21 8 24 9 27 10 30। ਕਾਮਨ ਕਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਆ ਦਿਸ, ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸੇਮ ਆ ਗਿਆ,
फर्स्ट कंपोनेंट टू ऑर्डर पेयर का सेम आ गया, टू टू आ गया ना। अगर सेम कंपोनेंट आ जाए टू ऑर्डर पेयर्स दे विच दैन वो अपना फंक्शन होएगा कि नहीं? नहीं। ठीक है जी, आंसर इज़ नो। ठीक है जी, तो इसका रीजन तुम लिख दोगे 2 4 और 2 6 हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट। ठीक है जी, अगर फर्स्ट कंपोनेंट आ दैन वो थोड़ा फंक्शन नहीं होगा, तो फिर क्यों का देयरफॉर जे इज़ नॉट अ फंक्शन। आप जी ਨੂੰ ही सॉल्व करते सी, तो जी अपना की होगा कि वो फंक्शन नहीं होएगा। ठीक है जी, लगी समझ? नैक्सट एग्जाम्पल देखते हैं हुण। नैक्सट एग्जाम्पल देखो, फाइंड द डोमेन फॉर विच द फंक्शंस एफ एक्स गिवन आ 2x² -1 एंड जी एक्स गिवन आ -1 -3x आर इक्वल। उन्होंने की कहा है कि थानू दो फंक्शनस गिवन आ उन्होंने डोमेन फाइंड करनी है सॉल्व आउट करके उन्होंने इक्वल रख के। तो किदा होएगा फंक्शन, देखो की गिवन आपां सोल्यूशन एफ एक्स गिवन आ 2x² -1, ठीक है जी, एंड जी एक्स गिवन आ 1 -3x। उन्हें की बोलिया आर इक्वल, दोनों फंक्शंस इक्वल आ, तो की हो गया इट मीनस मेरा एफ एक्स के हो गया जी एक्स से। ठीक है जी, एफ एक्स का आंसर कितना है 2x² -1 और यदा आंसर कितना गिवन आ 3x। तो आप एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स किया ना, एफ एक्स के इक्वल मैं किनू रखता दिस फंक्शन और जी एक्स के इक्वल किनू रखता दिस फंक्शन। तो की बन गया 2x² -1 इज इक्वल टू 1 -3x। तो मैं दोनों फंक्शन एक साइड कर दूँगी, तो की बन गया 2x² -1 आप केड़ा सी पॉजिटिव का 1 इधर आन के केड़ा बन गया नैगेटिव का 1 माइनस द 3x इधर आन के केड़ा बन गया पॉजिटिव का 3x, इधर की बच गया 0। दैन की बन गया 2x² -1 माइनस द 2 प्लस 3x इज इक्वल टू 0। तो इन्होंने रीअरेंज करो 2x² प्लस 3x माइनस द 2 इज इक्वल टू 0। हुण इहदा देखो तुसीं फैक्टर बना सकते हो, तो की बनणगे 2x² प्लस 1x प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट की कॉमन आ गया मेरा x, अंदर कितना बच गया मेरा, वेट इत्थे अपना फिर फैक्टर सही नहीं बनूगा। ठीक है जी, तो आप इत्थे ऊपर चेंज करते हैं, इत्थे ले लिया आप 4x, तो इत्थे अपना कितना बन गया माइनस द x, 4 चों माइनस द 1x गया, आंसर इज 3x। ठीक है, बिकॉज अगर आप इतने 2x प्लस 1x लेने ना तो अपना फैक्टर नहीं सही बनूगा। ठीक है, वो आंसर्स नहीं आऊगे, तो आप चेंज किया 4x माइनस x माइनस 2। ठीक है जी, तो हम आप इन्होंने दोनों के विचों x कॉमन ले लें, x कॉमन ले लिया, अंदर कितना बच गया इधर फिर 2x और इधर कितना बच गया सिर्फ माइनस द 1। ठीक है, दैन की हो गया फिर मेरा प्लस 2 आप कॉमन ले लिया इन्होंने दोनों के विचों, इधर कितना बच गया फिर मेरा 2x, दैन इधर कितना बच गया फिर मेरा -1। ठीक है जी, हम देखो मैं x में 2x ना मल्टीप्लाई किया, आंसर इज 2x²। दैन मैं x में -1 के मल्टीप्लाई किया, आंसर इज -1x। दैन मैं 2 में 2x मल्टीप्लाई किया, आंसर इज पॉजिटिव द 4x। दैन मैं प्लस दे 2 माइनस दे 1 मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस और 2 × 1 आंसर इज 2। तो फैक्टर सही बन गया ना हुण। तो हम देखो अपनी x की वैल्यूज़ कि आ जाएंगी x प्लस 2, दो फैक्टर्स बन जाएंगे और 2x माइनस 1 दो बन गए। हूँ इन्हों वैल्यूज़ लो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पॉजिटिव का 2 उधर जाके किहड़ा हो गया नैगेटिव का 2। ठीक है जी, दैन इधर 2x आ नैगेटिव का 1 उधर जाके किहड़ा हो गया पॉजिटिव का 1। तो आप x की वैल्यू कढ़नी आ, तो इधर की आ 2 मल्टीप्लाई है, उधर जाके की हो गया 1 के नाल डिवाइड। मेरे को x के आंसर्स किन्ने आए -2 और 1/2। ठीक है जी, ये मेरी की निकल गई वो डोमेन। अपन फंक्शनस बोले सी ना, तो आप वो की कढ़ ली डोमेन सॉल्व आउट करके। ठीक है जी, डोमेन फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, यही बोले सी ना एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। दैन कितनी बन गई आंसर इज -2 और 1/2। ठीक है जी, नैक्सट एग्जाम्पल देखो। नेक्स्ट देखो, लेट n बी द सैट ऑफ नैचुरल नंबर्स, डिफाइन अ रियल वैल्यूड फंक्शन। फंक्शन नैचुरल टू नैचुरल जा रहा है। ठीक है जी, वाई फंक्शन की गिवन आ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। यूजिंग दिस डेफिनेशन कंप्लीट दैट टेबल गिवन बिलो। टेबल गिवन आ एक्स दी वैल्यूज गिवन 1 2 3 4 5 6 7 और वाई दी फाइंड करनिया आ।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਨਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ fx ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਆ y ਦੇ। fx ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ y ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो ਹੁਣ ਦੇਖੋ अगर मेरा fx किहदे इक्वल हो गया y दे, तो मैं fx मेरा फंक्शन किहदे इक्वल आ 2x+1 दे। मतलब मैं इत्थे पुट कर सकती हाँ ना 2x+1 किहदे इक्वल है जी y दे। fx जो गिवन सीगा ਉਹਦੇ सामने 2x+1 गिवन सी, तो मैं fx की जगह पर 2x+1 लिख सकती हाँ। यस ठीक है। तो की हो गया मेरा y = 2x+1। ਹੁਣ x ਦੀਆਂ वैल्यूज़ कितों तक गिवन आ 7 तक, तो की हो गया पुट x = 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अपन इक्वेशन की गिवन आ y = 2x+1 यही गिवन है ना। तो हुण इहदे विच x दे विच 1 दियाँ 2 दियाँ 3 4 5 6 7 इहदी x ਦੀਆਂ वैल्यूज़ ਨੂੰ पुट करनियाँ शुरू कर दो। अपने कोल किहदा आंसर आ जाना y ਦਾ आंसर आ जाना ना। हुण y किहदे इक्वल हुंदी है fx दे, तो मैं x दे विच अगर इत्थे पुट करता 1 तो की हो गया f1 = y। तो y ਦਾ सॉल्व आउट करो की बन गया 2। पहले इहदे विच 1 वैल्यू पुट की 1 + 1 आंसर इज कितना हो गया 2 + 1 आंसर इज 3। ठीक है। नैक्सट y दे विच x की वैल्यू कितनी पुट करन लगी मैं 2, तो कितना हो गया 4 + 1 = 5। एज दैट सेम 2 दे विच x दे नाल की मल्टीप्लाई हो रहा 3, then 6 + 1 = 7। अगेन नैक्सट 4 + 1 = 8 + 1 9। then next 10 + 1 = 11। then next 12 + 1 = 13। then next last plus 1 = 14 + 1 = 15। तो मेरे को y का आंसर कितना आ रहा है 3। then y का नेक्स्ट 5 7 9 11 13 15। ठीक है जी। तो यदा मतलब की हो गया y किहदे इक्वल आ fx दे, तो f का आंसर इत्थे 1 पुट किया तो मेरे को 3। then f का आंसर 2 पुट किया, then 5 3 पुट किया, तो नेक्स्ट 7 4 पुट किया, 9 5 पुट किया 11, then 6 पुट किया 13 और 7 पुट किया तो 15। एक्स दी वैल्यूज़ पुट की 1 तो लेके 7 तक, तो मेरे को आंसर मिल गया। उन्होंने इत्थे फिल कर देना आप। ठीक है जी। तो अपना टेबल कंप्लीट हो जाऊगा। तो पहली वैल्यू कितनी आई है 3, तो पुट करो 3। then नेक्स्ट 5 नेक्स्ट 7 9 11 13 और 15। ठीक है जी। टेबल कंप्लीट। अपन क्या फंक्शन गिवन है नैचुरल नंबर्स के टेबल गिवन है और एक्स दी वैल्यूज़ गिवन है, कहते पुट करो। तो अपन पता अपना फंक्शन एफ एक्स कि होंगे जी वाई दे। तो एफ एक्स की जगह पर मैं की पुट करता 2x+1, तो वाई की वैल्यू में सॉल्व आउट करना शुरू करता एक्स दी वैल्यूज़ पुट करके। ठीक है। नैक्सट देखो 6th एग्जाम्पल की बोलता लेट फंक्शन गिवन है मेरे को 1 1 2 3 0 -1 -1 -3 बी अ लीनियर फंक्शन। लीनियर इक्वेशन याद आ ना सारे 10th की ax + b वाली। दैन फ्रॉम z * z मतलब कि इंटीजर टू इंटीजर फाइंड वो की करना मैं f(x). ठीक है जी। तो देखो फंक्शन की गिवन है मेरे को f रिलेशन 1 1 2 3 0 -1 दैन लास्ट -1 -3। ठीक है जी। गिवन है मेरे को और उन्हें की बोलिया बी आ लीनियर फंक्शन। थोड़ा एफ की है लीनियर फंक्शन। तो लेट f(x) फाइंड करना, तो मैं f(x) ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ चीज़ फाइंड करनी है मैं मान लिया कि लीनियर फंक्शन की हो गया मेरे को ax + b। ठीक है। b लीनियर फंक्शन। ठीक है जी। हुण देखो फर्स्ट कंपोनेंट की वैल्यू कितनी 1 2 0 -1। हुण अपने जो फर्स्ट कंपोनेंट होंगे वो एक्स सैट जां ए सैट दे होंगे, जो सैकेंड एलीमेंट होंगे जां कंपोनेंट होंगे वो वाई सैट जां फिर बी सैट दे होंगे। ठीक है जी। हुण f(x) की गल हो रही है, तो मैं ये फर्स्टली किहड़ा पुट करूँगी f1 पुट f1। हुण जो मैं f1 पुट किया है ax दे विच, तो कितना हो जाऊगा फंक्शन मेरा ax + b दे इक्वल आ। x की वैल्यू मैं 1 पुट की है, तो कितना बन गया a x की जगह पर 1 + b कि इक्वल आ गया जी a + b दे। ये इक्वल ही आ गया और a + b कि इक्वल आ गया मेरा 1 दे।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸੀ ਐਫ ਐਕਸ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਲੀਨੀਅਰ ਦੇ ਏ ਐਕਸ ਪਲਸ ਬੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਤਾ ਫਸਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਐਕਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ ਔਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ 1 ਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਸਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਦੈਨ ਉਹਦਾ ਨੈਕਸਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਦੂਸਰੇ ਸੈੱਟ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਆਂਸਰ ਐਕਸ ਸਕੁਏਅਰ ਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। 1 ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਐਕਸ ਸਕੁਏਅਰ ਦਾ ਆਂਸਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। 2 ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਐਕਸ ਸਕੁਏਅਰ ਦਾ ਆਂਸਰ 4 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸੈੱਟ 2 ਦੇ ਨਾਲ 4। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਐਕਸ ਸੀਗਾ 2 ਦੈਨ ਵਾਈ ਕੀ ਸੀ 4। ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਏ ਸੀ 2 ਬੀ ਕੀ ਸੀ 4। ਹੁਣ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਊਗੀ 1 ਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੁਣ ਅਗੇਨ 1 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਪਲੱਸ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਅਗੇਨ 1 ਦੇ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਐਫ ਐਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ 2, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 3 ਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਐਫ ਐਕਸ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸੀ ਏ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਬੀ ਦੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਐਕਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ 2, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਪਲੱਸ ਬੀ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜੀ 3 ਦੇ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 2a ਪਲੱਸ ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3। ਹੁਣ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਔਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਸਬਟਰੈਕਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਿਖ ਲਓ 1 ਫਰੋਮ 2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੈਨ ਵੀ ਗੈਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਕੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀ 2a ਪਲੱਸ ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3। ਦੈਨ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਿਹੜੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ a ਪਲੱਸ ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਤਾਂ ਸਬਟਰੈਕਟ ਇਹੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਮੈਂ, ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ b, तो इधर कितना बन गया 2a चो 1 ने गया आंसर इज a, दैन 3 चो माइनस का बन गया आंसर इज 2। मेरे को a के इक्वल आ गई जी 2 के इक्वल आ गई। दैन इन्हों पुट कर लाँगे, दैन पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 कि इक्वेशन से a प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो पुट करो a की जगह तो की हो जाएगा 2 प्लस b इज इक्वल टू 1, तो की हो गया 1 पॉजिटिव का 2 का जाके नैगेटिव का, दैन बी का आंसर किहदे कोल आ गया -1। चैक करो फिर देखो ए का आंसर किहदे कोल आ गया 2 दे, बी का आंसर किहदे कोल आ गया -1 दे। ए का 2 बी का आंसर -1 और मेरा फंक्शन की सीगा लीनियर ए एक्स प्लस बी यही सीगा। तो ये वैल्यू पुट कर दिओ तो की बन जाऊगा ए और बी दी वैल्यूज़ पुट कर दिए तो ये वैल्यू 2x प्लस माइनस देखो ए की जगह तो मैं की पुट करता 2x एज इट इज़ नाल आ वाला प्लस एज इट इज़, दैन बी की वैल्यू किहदे कोल -1 दे। तो की बन गया ये 2x प्लस माइनस माइनस द 1। तो मेरे को फंक्शन किहड़ा बन गया 2x -1 और उन्होंने क्या भी की सीगा फाइंड करना एफ एक्स, तो मैं फाइंड किया एफ एक्स। ठीक है, ये तो आप पुता कि देखा सीगा कि 1 मैं रखा तो 1 के इक्वल आ गया, फिर मैं 2 रखा एक्स की जगह पर और 3 के इक्वल आ गया। नैक्सट किया 0 तो एक्स की जगह पर रखोगे उन्होंने किहदे कोल रखोगे -1 दे, दैन फिर -1 एक्स की जगह पर रखोगे किहदे कोल रखोगे -3 दे। जो तुसीं इन्हां दोनों भी सेम इस तरीके सॉल्व आउट करोगे ना दैन तुहाडा फिर भी आंसर किहड़ा आना 2x -1 सेम आंसर आना। दैन नैक्सट 2 ऑर्डर पेयर नूं सॉल्व आउट करन दे भी। ठीक है जी, इस तरीके नाल तो आप इत्थे लिख दांगे वो दोनों वाले जिहड़े ऑर्डर पेयर्स आ, बिकॉज 0 -1 और -3 सैटिस्फाई इट। ठीक है जी, वो सैटिस्फाई करवा जाएंगे इस फंक्शन, तो वह आंसर भी ये इक्वल आ जाऊगा एफ एक्स इज इक्वल टू 2x -1 सेम आंसर आ जाना। ठीक है जी, ठीक है, आई होप थानू सारिਆਂ समझ आ गया होवे फंक्शन की हुंदा उसकी डेफिनेशन, दैन उन्होंने उस डेफिनेशन अप्रूवल किद्दां कराना सम्स दे अंदर। ठीक है, हुण तुसीं इस नाल दी एक्सरसाइज दे सम खुद सॉल्व आउट करन दी ट्राई करियो, अगर कोई प्रॉब्लम आऊगी तुसीं पुछ सकदे हो। ठीक है जी, आई होप सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आ चुका होएगा कि फंक्शन की हुंदा है। ठीक है, थैंक यू।